Hello students, so in this video I'll start with chi-square test, another very important type. और इसका गारंटी एक सम श्योर शॉट आएगा एग्जाम में. ओके, लाइक एनी पेपर यू पिकअप तो ये सम होगा ही. ओके, काई स्क्वायर का. तो आई डू इट टाइप वाइज सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू ऑल. तो आप हर एक टाइप का सम कर लेना, डोंट मिस इट आउट बिकॉज आई एम टेलिंग दिस इज अ श्योर शॉट क्वेश्चन. Okay, so let's quickly start and see what all types are covered in chi-square. So chi-square test. तो इसको CHI लिखते हैं, but it's pronounced as chi-square. Okay. तो इसका एक फॉर्मूला है. chi-square is summation of observed minus expected का square upon expected frequency. Okay, O means observed frequency, E means expected frequency. Okay, so it is used to determine association between attributes. ओके, ये अभी तो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मली जस्ट टू फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. वो सम्स में मैं बता दूंगा एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स मतलब क्या. ओके, देन सेकंड, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट. So you have learned how to do a binomial fitting and a Poisson fitting. Third, to test equality of proportions. And to test population variance with sample variance. ओके, तो बस इतना याद रखो. सो आई एम गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट टाइप राइट अवे. बहुत इजी है और मतलब और ज़्यादा हाई चांसेस है ना ये फर्स्ट टाइप आने के. ये टू डिटरमाइन एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स. ओके, एंड गुडनेस ऑफ फिट, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसका होता है आने का. ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप थर्ड और फोर्थ छोड़ दो बिकॉज यू नेवर नो. ओके, सो बेटर बी सेफ एंड मतलब आपके मार्क्स सिक्योर कर लेना बस. ओके, सो लेट अस टेक a problem. Okay, so your problem is investigate the association between the darkness of eye color in father and son from the following data. So they are telling, is there an association between the darkness of eye color of father and son? मतलब अगर father का eye का color is dark, then is it necessary कि son का भी dark होगा? तो we have to check such associations. Okay, so there are few more sums, like if the father is skilled, is it necessary that the son is intelligent? So if we have to check such associations, we go for chi-square test. Okay, तो association का sum आ गया, मतलब bonus है पेपर में. So now how do we tackle this sum? See, अब क्या करना है इसमें. color of father's eye and color of son's eye. See, सबसे पहले step 1, setting of hypothesis. Now in association type of sums, H naught और null hypothesis में you will always write there is no association. Okay, so ये याद रखना. और alternate में we'll write there is an association. ये भूल जाते हैं स्टूडेंट, बट दिस इज द ओनली केस वेयर इन नल हाइपोथेसिस वी डिसएग्री विद देम, सो देयर इज नो एसोसिएशन. देन स्टेप 2, अब काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन ड्रॉ द टेबल.
dark, non-dark. Basically now I am calculating expected frequency. ऊपर father's eye and this is for son's eye. Dark, non-dark. Okay. So last column is total. Okay, अब dark it is 4890. 4890. Total is 138. 80 and 7, 82. 862. Okay, and last में total. Why I am leaving so much gap, I'll tell you. अब 80 plus 48, 128. And this is 872. See, these are all observed frequency. दिया हुआ frequencies है, तो these are called as observed frequency. Okay, now we have to calculate expected frequency. तो I'm calling it as E. तो expected frequency में क्या करना है? कुछ नहीं दिमाग लगाना. See, if I'm calculating for this column, मतलब this cell, तो expected frequency क्या होगा? उसका corresponding total देखना नीचे और side में. Okay, so multiply them. 138 into 128 upon this total. So right total, bottom total और total total. Okay, उनको यूज करना है. सो यहाँ पे आएगा 1000. ठीक है. देन सिमिलरली टू राइट दिस इट इज 138 इंटू 872 अपॉन 1000. इसको लिखने के लिए 128 इंटू 862 अपॉन 1000. ये लिखने के लिए 862 अपॉन 1000. अब आंसर्स लिखते हैं. सो यू कैन कैलकुलेट इन योर कैलसी. यू कैन पॉज द वीडियो, कैलकुलेट करके आंसर्स रेडी रख सकते हो. ओके, सो आई एम राइटिंग द आंसर्स नाउ. ये आएगा 17.66. दिस विल बी 120.33 and this would be चलो ये नहीं लिखता मैं. तो अब इसको राउंड ऑफ करना है. सो 17.66 इज अप्रॉक्स 18. दिस इज अप्रॉक्स 110. एंड मेक श्योर कि ये जो दो वैल्यूज़ आया ना, ये और ये, इसका सम 128 है. तो अगर 18 मिला तो आई कुड हैव डन 128 माइनस 18 ऑल्सो, तो 110 मिल जाता. इसलिए आई हैव नॉट कैलकुलेटेड द लास्ट सेल. नाउ दिस इज 120. तो 872 माइनस 120 कितना आएगा? 752 आएगा. ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेबल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सम. ओके, सो नाउ आई विल मेक अ प्रॉपर टेबल. ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड, फिर ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, एंड दिस इज अपॉन ई. ओके, नाउ आई विल क्रिएट दिस टेबल. सो ये आएगा 48
और उसके करस्पॉन्डिंग 18। ऑब्वियसली यू कैनॉट राइट द रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट सेल, मतलब ऑब्जर्व मैंने ये लिया और एक्सपेक्टेड इसका लूँ तो वैसा नहीं चलेगा, बराबर, ये लेना पड़ेगा आपको। ओके, गेटिंग दिस? सॉरी। Then you have 90 and 120, 80 and 110, 782 and 752. ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इनके वैल्यूज़ क्या आएंगे तो ये भी लिख देता हूँ मैं। तो ये मिलेगा 50, ये मिलेगा 8.18, सॉरी this would be 7.5, this would be 8.18 and this would be 1.197. I have already calculated the values just to save your time and my time. Okay, मतलब मेरा तो टाइम लग गया उसमें, बट ठीक है। And you can cross check the answers, because directly don't sit in the exam without touching the calculator, नहीं तो वहाँ पे क्लिक नहीं होगा फटाफट। ओके, तो काई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? काई स्क्वायर इज व्हाट? समेशन ऑफ, सो दिस इज 66.875। ठीक है, हो गया। नाउ स्टेप 2 तक हो गया, काई स्क्वायर मिल गया। अब स्टेप 3, LOS कुछ नहीं दिया है, मतलब हाँ इसमें कुछ नहीं दिया, मतलब 5% लेना है LOS अगेन। एंड इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का फंडा आएगा, but in association type of sum, degree of freedom is r minus 1 c minus 1, where r stands for number of rows in the table and c stands for number of columns in the table. So let us see the table in the question. कितने columns है? 1 2 3, और कितने rows है? 1 2 3, but you don't count the total का column and row. Okay, so ideally there are only 2 rows and 2 columns. तो 2 minus 1, 2 minus 1, so 1 into 1 is 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। अब क्रिटिकल वैल्यू, ओके, काई स्क्वायर अल्फ़ा। काई स्क्वायर अल्फ़ा ना, मतलब काई स्क्वायर, तो इसमें पूरा कर्व आपका राइट साइड पे होगा, मतलब इसमें नेगेटिव का फंडा नहीं है। तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द टेबल, लेट अस चेक। ओके, 5%, 5% मतलब यहाँ, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, सो दिस इज द वैल्यू 3.841, 3.841। स्टेप 5, so chi square is greater than chi square alpha, तो HO is rejected। HO रिजेक्ट हो गया मतलब क्या? HO रिजेक्ट हो गया मतलब there is an association, that means automatically H1 is accepted। okay, so there is an association between the darkness in color of father's eye and son's eye। okay, so let us move on to the next sum। okay, so the next problem, a total of 3759 individuals were interviewed in a public opinion survey on a political proposal. Of them 1872 were men and the rest were women। okay, so when you are reading the question, तो मतलब दिमाग चलना चाहिए कि okay, a total of 3759 individuals were interviewed, so वो जो टोटल का टोटल होता है ना, यहाँ पे आता है this, यहाँ पे 1000 था। okay, so यहाँ पे 3759 है, and then reading the second statement, of them 1872 were men and the rest were women, तो columns आना चाहिए दिमाग में कि men and women। okay, then a total of 2257 were in favor of the political proposal and 917 were opposed to it। तो अब इनका behavior कि मतलब they some were in favor of the proposal, some were in oppose of the proposition। a total of 243 men were undecided। okay,
sorry, a total of 243 men were undecided and 442 women were opposed to the proposal. तो और एक कैटेगरी आ गया, सी फेवर, opposed and undecided. So do you justify or contradict the hypothesis that there is no association between sex and attitude at 5% LOS? Okay, so is there a association between the gender and the attitude in the political proposal? वो पूछा है. तो सी अभी तो वी आर डूइंग इट टाइप वाइज. आई एम टेलिंग यू कि एसोसिएशन का सम है, इसीलिए ऐसे ऐसे करना है, तो वो क्लिक हो जाता है, रिलेट हो जाता है. बट व्हेन सच सम्स कम इन एग्जाम ना, एंड यू आर रीडिंग द वर्ड प्रॉब्लम, तब स्ट्राइक नहीं होता जल्दी से कि मतलब क्या यूज़ करना है. तो कीवर्ड्स पकड़ना कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन. डू यू जस्टिफाई और कॉन्ट्राडिक्ट? नो एसोसिएशन वर्ड आ गया ना, तो मतलब इसी टाइप का सम होगा. ओके, तो पेपर में ऐसे मतलब लाइंस को डिकोड करना. So what you can do is you can pause the video, you can try the table and I'll help you out after some time. Okay, तो आप पॉज कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ. तो सबसे पहले इसमें प्रीवियस सम और इसमें क्या फ़र्क था? प्रीवियस सम में टेबल दे दिया था तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. यहाँ पे टेबल डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, तो वी हैव टू ड्रॉ द टेबल. ओके, सो आई विल ड्रॉ द टेबल. Sex, so I'll write gender. And attitude. Men, woman. Favor, favor, then undecided, और क्या आएगा? अपोज्ड. ओके, बस इतनी कैटेगरीज है. अच्छा, अब फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं और डेटा भरते हैं. अ टोटल ऑफ 3759 वर इंटरव्यूड इन अ पब्लिक ओपिनियन सर्वे. तो कितना था? 3759. ओके, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था? 1872 वर मेन, तो मेन का टोटल 1872 एंड द रेस्ट फॉर वुमेन. A total of 2257 were in favor of the proposal. 2257 were in favor of the proposal and 917 were opposed to it. Okay. A total of 243 men were undecided. तो men और undecided कितने थे? 243 and 442 women were opposed to it. हाँ, बस ये डेटा दिया है. तो अभी तक तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन रीड करके आपके लिए डेटा कंसोलिडेट करके दिया है. बट देर आर स्टिल अननोन्स टू बी फिल्ड इन. ओके, तो अब ये बहुत इजी है, ये कोई भी बता सकता है कि कैसे करना है. मतलब अभी वुमेन भरना है, तो दिस -1872 विल गिव यू 1887. तो ये आ गया. ओके, देन 917 minus 442 will give you this. So that is 475. अब this minus this and minus this, टोटल में से फेवर वाले सब्ट्रैक्ट करो और अपोज वाले सब्ट्रैक्ट करो, तो यू विल गेट अनडिसाइडेड. यू विल गेट 585. then 585 minus this will give you 294.
ओके, और अब बाकी ऊपर के भर लेना, यू विल गेट 1154 एंड 1103। आई होप आपको कैलकुलेशन आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है. So these are the observed frequencies. Okay, so you should clearly understand what is the difference between this and the previous sum. Okay, so these are the observed frequency. अब क्या करना है? अब you can proceed with the sum. I am not solving the entire sum. I just wanted to explain you how the table is done. So you can calculate the expected frequency as I had explained in the previous sum. So I'll just write one expected frequency for you all जिनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है. इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखना है ना इस सेल का. तो क्या करना, तो 1872 अपॉन 3579. ओके, तो आ जाएगा. तो दैट यू कैन डू नाउ. आई एम नॉट सॉल्विंग द सम. ओके, सो द नेक्स्ट सम. Two batches of 12 animals, each are taken for test of inoculation. One batch was inoculated and the other was not. The number of dead and surviving animals are in the following table for both the cases. Can the inoculation be regarded as effective against 5% LOS? ये भी बहुत अच्छा सम है. ये मैंने क्यों लिया है वो आपको थोड़े टाइम में समझेगा. बिकॉज यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग, अरे टेबल का सम तो आ गया, तो वी शुड हैव मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट टाइप, बट दिस इज स्पेशल सम, सो आई हैव टेकन इट. ओके, सी. ओके, step 1. There is no association, and here there is an association. Step 2. Step 2. अब वो टेबल बना के ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखना है, तो मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस विल बी 10 into 12 upon 24. Okay, it's better I make a new table. Just bear with me for some time. Dead, surviving. Okay, so this is a table. ये हो गए आपके ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज. अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो 10 into 12 upon 24. So this is 5. 14 into 12 upon 24. So this is 7. 10 into 12 upon 24. तो ये 5. 14 into 12 upon 24. So this is 7. ठीक है, तो इजी है ये तो. हाँ, अब why am I taking this sum? See, whenever the expected frequency is less than 10 ना, we merge it with the previous row. तो जैसे अब ये पूरे रो को if I merge it with the previous row, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड मर्ज होगा तो ऑब्जर्व भी मर्ज होगा, तो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम में प्रॉब्लम आएगा. तो नंबर ऑफ रोज वुड बिकम ओनली 1. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, R-1 C-1. तो दैट टाइम R-1 में इफ़ यू कीप R एज 1, तो क्या आएगा, R को 1 रखोगे तो 1-1 0 आएगा. बट टेबल में 0 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू ही नहीं है. तो देन देर इज समथिंग वी अप्लाई दैट इज कॉल्ड एज येट्स करेक्शन. सो आई विल राइट इट हियर. इट्स येट्स करेक्शन. ओके, तो येट्स करेक्शन अप्लाई करना होता है. तो आई विल क्विकली राइट इट फर्स्ट. mod of this minus 0.5.
Okay, that is Yates correction. So observed क्या है 2 और उसके corresponding expected 5. Then you have 10 and 7, 8 and 5, 4 and 7. Okay, and फिर बस बाकी का फंडा सेम है. Observed minus expected का स्क्वायर ये आएगा. ये तो मॉड्यूलस है तो -2.5 विल बिकम 2.5 सॉरी 3 माइनस दिस इज 2.5. तो इफ़ यू ऑब्जर्व सब कुछ 2.5 आ जाएगा. ओके, देन नाउ दिस यू हैव टू कैलकुलेट. इसका स्क्वायर करके डिवाइड बाई ई करना है. तो आई डायरेक्टली राइट द आंसर्स. Okay, so I have filled the table and these are the values you get. So finally chi square क्या आएगा. तो बस ये सब मैंने सिर्फ ये येट्स करेक्शन बताने के लिए चूज़ किया था. सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर नाउ. ये 4.29. ओके, अब स्टेप 3 करते हैं. स्टेप थ्री LOS 5%, degree of freedom R-1, C-1. तो 2 - 1 and 2 - 1 is 1. तो chi square का वैल्यू 3.841 आता है आई गेस. 3.841. अब chi square is greater है ना. हाँ, chi square alpha. तो H0 is rejected. So there is an association between inoculation and survival years. Okay. तो ठीक है. अब I'll give you few sums for your practice. You can practice them. ओके, सो दीज आर योर प्रैक्टिस सम्स. तो फर्स्ट सम में तो डायरेक्टली टेबल दिया है और टोटल का कॉलम वगैरह सब दिया है. यू जस्ट हैव टू चेक डू दीज फादर्स डू दीज फिगर्स होना चाहिए या फैक्ट्स सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट स्किल्ड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज. ओके, सो दैट सम यू कैन डू इट. एंड द नेक्स्ट सम, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इफ देर इज अ रिलेशन बिटवीन लिटरेसी एंड स्मोकिंग. ओके, तो ये स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स और यहाँ पे एक कॉलम तुम लोग को बनाना पड़ेगा. एक कॉलम और एक रो. टोटल एंड दिस टोटल. ओके, यू विल हैव टू मेक द वन एडिशनल रो एंड वन एडिशनल कॉलम. ओके, एंड देन यू कैन प्रोसीड. इजी सम्स है, मतलब लॉजिक वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा और इसमें येट्स करेक्शन वगैरह कुछ नहीं है दोनों में. सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. ओके, so that's it for this video. I'll come up with the next type in the next video very soon. Okay, so till then, stay tuned, goodbye, and thank you.